Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to your today's session of current affairs. Today is Monday. I am Drishti and we are going to cover a couple of important topics that were in news in the past week related to your polity and governance section, which is going to help you in both your prelims as well as mains examination. So we are going to cover a couple of very important topics and I'm going to give you very interesting questions for your Seize the Mains initiative. We started this initiative a couple of weeks back. So daily we give you one question pertaining particular to one particular subject and you can write its answer. A couple of things we are going to discuss about the answer here itself, and you can write the answer and post it on our website. Uska link you can find in the description box which is given below, right? And from there the answer will be evaluated by our team of experts entirely free of cost, which is going to help you in your answer writing practice, and from there you can check where you can improve, right? So let's get started. Let's see what's the index for today is. So first we are going to cover your Places of Worship Act. Places of Worship Act पीछे न्यूज में क्यों था? So erstwhile family of Kashi. See, Kashi was the old name of, ancient name of the Banaras city. ठीक है, तो Banaras has been in news, very much in news because of Gyanvapi Mosque controversy that has been happening for a while. So the erstwhile रॉयल कैंडिडेचर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, they have filed a petition in Supreme Court against the Places of Worship Act. There are a couple of concerns regarding the act. क्या है act? क्यों problems आ रही है? We are going to cover everything in detail, right? Hello Sakshi, good afternoon everyone, good afternoon, no issues. I hope you guys have tuned in. Sakshi, am I not audible? I think I am. Could you guys please let me know whether I'm audible or not? Okay, Sakshi, thank you. So, second topic we are going to discuss is about section 66A of IT Act. Cool. Let's get started. Now, section 66A of IT Act we are going to discuss. इसमें related a couple of issues were there, and Supreme Court has again raised this topic because there are a couple of issues arising out of it. ठीक है, बहुत सारी अननेसेसरी इसमें अरेस्ट होते जा रहे हैं एंड देयर इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द स्टैंड्स, वो डिस्कस करेंगे. देन द थर्ड टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट. देयर हैज बिन a new building, new structure invention in the Parliament of India. ठीक है, जो राष्ट्रपति भवन से लेके आपका पार्लियामेंट तक का रास्ता है उसके बीच में couple of things have changed and it is a change to 93-year-old legacy of India. ठीक है, earlier the parliament was as all of you know was built by Britishers, right? And they built it as per that time also how it suited them, but with the times, how the times have evolved, a couple of changes were needed. So Central Vista project has come up. We have dedicated a lot in this to our freedom fighters, particularly Netaji Subhash Chandra Bose, also your Chhatrapati Shivaji Maharaj. So that has been in news. Also, what are the repercussions, what are the concerns raised? We are going to discuss that, right? So these are the topics we are going to discuss today. Now, let's see what your Seize the Mains question is. Seize the Mains question है आपका recently the Places of Worship Act of 1991, right? Places of Worship Act 1991 जो है, this has been challenged, and in this slide you have to explain the concept of कलरेबल लेजिस्लेशन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलरेबल लेजिस्लेशन का. आई होप आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा. इफ यू हैवंट स्टडीड इट इज अ गुड टाइम. ठीक है, रिसर्च अबाउट इट, राइट योर आंसर. Meanwhile, what else you have to discuss? You have to discuss the issues which are associated with the Worship Act of 1991, and you have to suggest some measures that can be done, that can be adopted to rectify the situation. You have to write this answer in 250 words and the weightage is 15 marks, right? So these are the things that you have to take care of. Worship of Act क्या है वो discuss करते हैं. Then शाम को you'll find your answer to this question and we are going to discuss it in detail, right? Let's get started. So now
recently, why this was in news? This was in news because, as I already told you, erstwhile family of Kashi, that is Banaras, okay, royal family of Kashi, they have approached Supreme Court and they have challenged the Act of 1991. Now, what is going to happen? A 3-judge Supreme Court bench is going to sit and they are going to give their verdict, their opinion. At least the case will be heard on 11th of October 2022. So everyone is waiting. Let's see what evolves out of this situation. This particularly is in direct conflict with the, not conflict, in the line of communal harmony in the country, considering everything that has been going on. It is a very crucial stance, very crucial topic, and which has to be handled very sensitively. Now, if you see about the history of the act, it was brought in by the P.V. Narasimha Rao government in 1991. Now, what they said was, they said that identity of a religious place of worship as had existed on 15th of August 1947, as in जिस दिन देश आजाद हुआ, on the eve of our Independence Day, that should not be changed, that would not be changed, should not be changed, except Ayodhya के हम उसको change नहीं करेंगे. Also because that Ayodhya Ram Janmabhoomi case and Babri Masjid case has been in line for a lot of years, many years, and उसके ऊपर continuous petitions file होती रही थी. So that is the only exception that was there. There are a couple of other exceptions as well, but एक particular case scenario इसके ऊपर रखा गया था that this will not be included, and ultimate जो decision आएगा that will be after the negotiated settlement that has happened, right? There's some question, I guess, what you cannot do directly, cannot do indirectly as well. Yes, Kanu, we are going to get on that topic. Let's first understand what the topic is, right? Now, what are the major provisions of the act? Now, major provisions of the act, section 3 of the act कहता है, it bars conversion. There is going to be no conversion in full or part at the place of worship of any religious denomination. It does not pertain to any particular religion, whether it is Hinduism, Buddhism, Sikhism, any religions. So, all of the religions are included in it. Even if denomination जो है बहुत छोटा भी है, even that is not going to happen. ठीक है. Now section 4(1) क्या कहता है इसका? It declares that religious character of place of worship shall continue to be the same which existed on the eve of independence. Now then section 4(2) आता है. 4(2) ये कहता है any suit or legal proceeding with respect to conversion of religious character of any place of worship जो एग्जिस्ट करा था आपका 15 अगस्त 1947 को, pending before state shall abate and no fresh suit or proceedings will be included in it except your Ayodhya case. Now section 5 क्या कहता है? section 5 ये कहता है the act shall not apply to Ram Janmabhoomi Babri Masjid case and any suit, appeal or proceeding relating to it will not be entertained in any sort of manner, right? Now section 6 another clause आता है इसमें. section 6 ये कहता है anyone who defies the conversion of the status of a place of worship is liable to be prosecuted. उसको सजा दी जाएगी. There is a jail term, ठीक है, there is a minimum punishment of maximum 3 years, ठीक है, there is jail punishment. Also इसके अलावा there is going to be monetary penalties for the same, right? And multi-layer में पूरी proceeding होगी, so it can go from worst to worst case scenario. So it's better no one gets indulged in this process. Now issue क्या आ रहा है? जो erstwhile family है ज्ञानवापी मॉस्क का जो पूरा केस आ रहा है, सो द erstwhile रॉयल फैमिली ऑफ काशी बनारस, ठीक है, दे वर द गार्ड्स ऑफ द होल हिंदू सिटी. नाउ फॉर देम दे हैव अ होप. जैसे राम जन्मभूमि का केस वॉज इवॉल्व, देयर वॉज अ डिसीजन दैट केम आउट ऑफ इट. दे आर एक्सपेक्टिंग जो ज्ञानवापी मॉस्क वाला इशू है, इवन दैट कुड गेट सॉल्व्ड.
Also, there is the same issue that has been lying with the Mathura Janmabhoomi case, Krishna Janmabhoomi case. So there are a lot of tussle of power going on ये पूरे religious segment में, and everyone is hoping that these might get sorted somehow. ठीक है, तो ये पूरा tussle इस बात पे चल रहा है. Now आगे बढ़ते हैं. Objectives क्या थे? Objectives were they wanted to provide for maintenance of religious character of the place and उसको किसी भी तरह से hamper नहीं किया जाएगा. Also, they did not want to entertain any sort of new claims on any religion, religious based denomination. ठीक है, कोई भी नया टेम्पल आ रहा है, कोई भी नया कुछ आ रहा है, उसके ऊपर बेस्ड कुछ भी they did not want new allegations to happen. And the last and the foremost objective was कि उस प्लेस की कम्यूनल हार्मनी शुड नॉट बी डिस्टर्ब. वी ऑलरेडी सॉ व्हाट हैपेंड इन द पार्टीशन एंड द होल कंट्री हैड टू पे द प्राइस फॉर इट. ठीक है, सो एनी सॉर्ट ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ जो भी पूरा आपका इशू है, नो वन वांट्स इट टू गेट रिपीटेड. वेदर कितने दंगे हुए हैं, वेदर इट इज गुजरात, एवरीवन हैज सीन इट, एंड अल्टीमेट price has to be paid by the common man, the civilian man. So just to restrict it, the court has stuck with the provisions of the act. But अभी इसमें continuous petitions आ रही है. Let's see 11 अक्टूबर को क्या होता है. Now law को challenge क्यों करा जा रहा है? Law को challenge करा जा रहा है on the basis of the grounds that it bars the jurisdiction which is the basic structure of structure doctrine of constitution as was clear in केशवानंदा भारती case. ठीक है, तो ये एक इसको हैम्पर कर रहा है. नाउ इट इज ऑल्सो बीइंग आर्ग्यूड दैट इट इम्पोजेस आर्बिट्रेरी इरैशनल रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट. रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट किसको बोलते हैं? कि आपने आज कोई लॉ पास करा है एंड आपने ये बोल दिया कि पास्ट में इस डेट से ये लागू हो जाएगा, पास की इस डेट से ये जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं सब पे लागू हो जाएगा. यूजुअली रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट जो आपकी जाती है, इट गोज इन द डोमेन ऑफ टैक्सेशन. बट इन दिस केस ऑल्सो आपका जो आज़ादी का टाइम था, द इवनिंग ऑफ 15 अगस्त 1957, दे अप्लाइड द लॉ सिंस देन. ठीक है, तो दिस हैज हैपन. नाउ इट abridges the right to religion of Hindus, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड सिख्स, ये कहा जा रहा है. तो ये एक मेजर इशू है, ये एक मेजर पॉइंट है जिसके ऊपर इसको चैलेंज करा जा रहा है. क्रिटिसिज्म, मेजर क्रिटिसिज्म इस लॉ का ये कहा जाता है कि दिस वाज पास्ड इन द मोस्ट इरेगुलर मैनर. ठीक है, अनडेमोक्रेटिक मैनर एंड विदाउट एनी रेगुलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सो आप देखा जाए इसको तो ये कहा जा रहा है इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल इन इटसेल्फ, इट वायलेट्स द बेसिक थीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए इसको चैलेंज भी करा जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या रहा है इसके ऊपर? सुप्रीम कोर्ट हैज सेड अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में दैट एक्ट इम्पोजेस अ नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स enforcing the commitment to secularism. ठीक है, because see इशू ये बहुत पहले से चल रहा था and lot of emotions, lot of sentiments were attached. So Supreme Court sort of took a neutral stand. They had to take a neutral stand. It is the domain of judiciary की unbiased opinion रहेगा. But at the same time they had to maintain the communal harmony. ठीक है, कुछ भी दंगे वगैरह नहीं भड़कने चाहिए. That is the basic ऑब्जेक्टिव. जितनी भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती हैं, वेदर इट इज एग्जीक्यूटिव, वेदर इट इज जुडिशरी, ठीक है, दे वांट देयर शुड बी पीस इन द कंट्री. तो इसके लिए दिस वाज द स्टैंड. नाउ कोर्ट आल्सो वेंट ऑन टू से जो नॉन रेट्रोग्रेशन वाला है, इट इज अ फाउंडेशनल फीचर ऑफ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स. तो ये उसको वायलेट नहीं कर रहा है. दिस इज व्हाट द कोर्ट सेड. नाउ लॉ जो है आपका ये प्रिजर्व करता है सेक्युलरिज्म. ठीक है, सेक्युलरिज्म, टॉलरेंस इसको बोला गया. एंड जो स्टेटस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप है इंडिपेंडेंस का, दैट वाज क्विड प्रो क्वो. ठीक है, तो उसको वहां पे फुल स्टॉप लगा दिया गया. नाउ इन प्रिजर्विंग द कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ द वर्शिप, जो पार्लियामेंट है दे हैव मैंडेटेड कि अनसर्टेन टर्म्स जो रहेंगे हिस्ट्री में रॉन्ग्स के, उनको बहुत ज्यादा आगे एक्सटेंड नहीं करा जाएगा. ठीक है, देयर इज नो पॉइंट इन कॉन्टिन्यूसली
पोस्टमार्टम करें आप कि पीछे क्या हुआ, क्या आगे हुआ, एंड उसके बेसिस पे द फ्यूचर हेड उसको स्पॉइल करा जाए. सो सुप्रीम कोर्ट हैज स्टक विद द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ताकि बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज हैं उनका पेंडोरा बॉक्स ना खुले. देयर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज विच एक्चुअली नीड्स एड्रेसिंग, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, बेसिक इलिटरेसी, हाइजीन, सैनिटेशन फॉर एवरीवन. दे डू नॉट वांट द पेंडोरा बॉक्स ऑफ कम्युनल हार्मनी टू ओपन अगेन. ठीक है, तो दैट इज द रीजन सुप्रीम कोर्ट हैज बिन ट्राइंग टू डील विद द होल इशू बहुत पोलाइटली. नाउ अगर आप वे अहेड की बात करो, व्हाट कैन बी डन नाउ, जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं दे कैन बी ब्रॉट इनटू कॉन्फिडेंस दैट उनका जो पर्सनल रिलीजियस डोमेन है उसको भी किसी भी तरह से अटैक नहीं करा जाएगा, एंड दे विल बी अलाउड टू, दे विल बी क्या, दे आर अलाउड, जैसे कि दे आर अलाउड टू प्रैक्टिस देयर फेथ इन पीस. उसमें किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला जाएगा. इट विल नॉट बी हैम्पर्ड. ऑल्सो एट द सेम टाइम व्हाट दे आर गोइंग टू डू, जो जुडिशियल रिव्यू है, राइट, लॉ शुड नॉट बार जुडिशियल रिव्यू. जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को चैलेंज करने वाला पॉइंट बार बार निकल के आ रहा है, that should be taken care of. So these are a couple of suggestions which I have brought, and आप अपने आंसर्स में you can write a couple of more suggestions and एक holistic आंसर इसके ऊपर लिखेंगे. You can post it on our website and then उसके बाद you can match की कहाँ पे कमी पेशी थी and accordingly you can benefit, right? अब चलते हैं आज के next topic पे. Next topic for today is section 66A of the IT Act, Information Technology Act. Why this was in news? This was in news because recently Supreme Court has expressed concerns over states who have been continuing to register your FIRs for offences under your section 66A of IT Act, despite कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था इन 2015. सो इट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन 2015. आज की डेट में हम 2022 में हैं. इन इवन नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ अरेस्ट्स हैपनिंग, पीपल आर बीइंग हरास्ड ओवर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, एंड सुप्रीम कोर्ट का ये मेजर कंसर्न निकल के आया है. ठीक है, पूरा क्या केस क्या है देखते हैं. शुरू कहाँ से हुआ सारा केस? सो देयर वॉज, इसको श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस बोला जाता है. सो इट ऑल स्टार्टेड इन 2012. 2012 में क्या हुआ, देयर वॉज अ PIL filed by a law student, Shreya Singhal, and she sort of seeked amendment in your section 66A. After क्या हुआ, there were two girls, they commented something and one of them commented something and one of them liked the comment. There was a comment particularly on this whole Maharashtra big family, बाल ठाकरे, जो आपके शिवसेना प्रमुख हैं बाल ठाकरे, उनके ऊपर कुछ कमेंट करा गया था एंड वन ऑफ देम लाइक्ड इट. सो वहाँ से चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई. नाउ व्हाट हैपेंड, May 16, 2013 में उनको उसके बाद अरेस्ट कर लिया गया, इन दोनों लड़कियों को. नाउ May 16, 2013 में जो आपका एपेक्स कोर्ट है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट, दे सेड पर्सन एक्यूज्ड ऑफ पोस्टिंग ऑब्जेक्शनेबल. ठीक है, इट सी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली उसके जो भी डिटेल्स हैं वो लिस्टेड हैं. व्हाट इज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड व्हाट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इफ यू आर एंटाइसिंग एनी सॉर्ट ऑफ, ठीक है, कि वहां पे दंगा फसाद हो या फिर आप ट्रीजन दिखाना चाह रहे हो, ओनली इन दैट केस इट इज सेड टू बी ऑब्जेक्शनेबल. या आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो, just because you are having an opinion which does not suit someone else. ठीक है, मैं आपके ओपिनियन से डिसअग्री कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो कहा है वो ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा. देयर आर वेरी क्लियर लाइंस, क्या लॉ की नजर में ऑब्जेक्शनेबल है क्या नहीं है. सो क्लियरिंग दैट आउट, एपेक्स कोर्ट सेड it is not unconstitutional. Ultimately February 26, 2015 में एपेक्स कोर्ट ने अपना जो जजमेंट है इसको बैक करा अगेन. दे रिजर्व द जजमेंट एंड सेड ये जो पूरा सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट है, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेन जो भी इसके अंडर अरेस्ट करी गई हैं दे शुड बी रिलीज्ड. ठीक है, नाउ इसके अलावा देर आर टू मोर प्रोविजन. सेक्शन 69A इन द सेम एक्ट, इट प्रोवाइड्स पावर टू इशू डायरेक्शंस. इसमें आप क्या कर सकते हो,
to block public's access to any information that has been rotating by the your social media. ठीक है. Also section 79 आता है, इसमें जो इंटरमीडियरीज हैं आपकी इस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के रेगुलेशन के लिए, दे कैन हेल्ड लायबल. इस पूरे केस में ट्विटर का जो हेड है, ट्विटर हैज बिन कॉट अप इन पूरा ये सारा प्रोसेस है, एंड देयर इज अ कॉन्टिन्यूस बैटल गोइंग ऑन बिटवीन ट्विटर एंड द यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज एवरीथिंग ट्विटर said we can control बहुत थोड़ी बहुत चीजें, but we cannot control and monitor each and every word and we cannot block that person. But ये पूरा केस ट्विटर का भी निकल के आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें पैरेलली चल रही हैं, इसलिए दिस होल टॉपिक बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट, राइट. नाउ अगर हम आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या है. आर्टिकल 19 क्या कहता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. नाउ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए. फ्रेंडली रिलेशंस जितने हैं आपके फॉरेन स्टेट से वो रहने चाहिए, आप उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलोगे. देयर शुड बी अ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी. एंड इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफिस, इस केसेस में आपके अरेस्ट हो सकते हैं. सेक्शन जो आपका 66A है वो क्या कहता है, एनी इंफॉर्मेशन दैट इज ग्रोसली ऑफेंसिव. ऑफेंसिव किसको होगी किसको नहीं होगी इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन उस टाइम पे नहीं थी. एनी इंफॉर्मेशन विच यू नो टू बी फॉल्स बट विच इज सेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ कॉजिंग अनोयंस, इसको गलत माना जाएगा. ऑल्सो एनी इंफॉर्मेशन यू नो टू बी फॉल्स बट अगेन it is sent for the purpose of causing inconvenience to a particular person or a group of persons or any sort of group, उसको भी a sort of nuisance actually accept करा जाएगा. Now इस पूरे केस का criticism क्या आ रहा है, criticism ये कहा जा रहा है the main problem was with the vagueness about what is offensive. ठीक है, उसकी clear cut definition नहीं थी, and ये जो word है for different people, for different people the word could mean different things, so there was said to be a very wide connotation about it. Most of the terms which were used in section, they had not been specifically defined under the act. Also जितनी petitions है, they continuously argued there must be something done about it so that जितना भी आगे लोगों को problem ना हो, right. सेक्शन 79 मैंने आपको ऑलरेडी बताया, द होल ट्विटर वॉर हैज बिन गोइंग ऑन एंड अभी भी ये केस चल ही रहा है. सेक्शन 79 आपका ये कहता है, एनी इंटरमीडियरी शैल नॉट बी हेल्ड लीगली अदरवाइज लायबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डेटा दैट हैज बिन ट्रांसमिटेड. बट इस पूरे वॉर में ट्विटर हैज बिन कॉट इन द क्रॉस फायर एंड ये भी अलग से एक सेक्शन चल रहा है आपका, ठीक है. तो लेट्स सी आगे क्या होता है. सुप्रीम कोर्ट हैज रेज्ड कंसर्न्स बट कॉन्टिन्यूसली वी आर गेटिंग अपडेट्स की लोग अभी भी परेशान हैं. लेट्स सी इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होगी. इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट वी आर गोइंग टू टेक इट अप अगेन, राइट. लेट मी सी, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर, राइट. ओके ओके, लेट्स गेट अहेड. ठीक है, अपना तीसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं आज का, सेंट्रल वीस्टा प्रोजेक्ट. नाउ रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अनवेल करा है आपका न्यू लुक ऑफ रिवैम्प्ड पार्लियामेंट. ठीक है, सेंट्रल वीस्टा एवेन्यू इसको कहा जा रहा है एंड इट्स अ 3 किलोमीटर स्ट्रेच फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट. ठीक है, दोज हु हैव बीन टू दिल्ली, देयर इज ऐसे लंबाई में है पूरा. ठीक है, देयर इज राष्ट्रपति भवन, फिर पीछे आपका देयर इज अ होल एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड. आगे आके देयर इज इंडिया गेट जहाँ पे आपकी अमर ज्योति जो मशाल है वो जलती है. ठीक है, इट इज गार्डेड बाय योर one personnel from army, one personnel from air force, one personnel from Indian navy. ठीक है, at all times जो ज्योति है वो जलती है and it is very safely guarded. Earlier people were allowed to take their vehicles in front of Amar Jyoti Jawan as well, but अब उसको strictly prohibit कर दिया गया है because of security purposes. ठीक है, now there has been a couple of changes. पहले क्या होता था, किंग्सवे और जो राजपथ जिसको कहा जाता था, दिस वाज सीन एज अ सिंबल ऑफ स्लेवरी. ठीक है, एंड जस्ट टू इरेज दैट फ्रॉम द हिस्ट्री, इसको निकाल के जो पूरा 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसको चेंज कर दिया गया है एंड लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स हैव हैपेंड देयर.
चेंजेस क्या क्या करे गए हैं, लेट्स सी। स्टैचू जो है सुभाष चंद्र बोस जी का वो लगाया गया है वहां पे, ठीक है। देयर वाज अर्लियर अ स्टैचू ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है, हु उस जो कहाँ पे लगा हुआ था, जो ग्रैंड कैनोपी है पूरी वहां पे लगा हुआ था, बट उसको इस टाइम हटा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वहां पे स्टैचू लगाया गया है एंड उनको कमेमोरेट करा गया है। अंडमान आइलैंड्स को देखो अगर आप तो बहुत रिसेंटली वहां पे भी उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है। नाउ इंडियन नेवी ऑल्सो दे हैव अडॉप्टेड द फ्लैग ऑफ जो छत्रपति शिवाजी का सिंबल था वो। तो कॉन्टिन्यूअस जो 75th इंडिपेंडेंस का पूरा सेलिब्रेशन था, आज़ादी का अमृत महोत्सव, यू विल सी एक बेसिक थीम लाइन चल रही है। जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, वी हैव बिन पेइंग आवर रिस्पेक्ट्स टू देम, ठीक है, उनको कॉन्टिन्यूसली कमेमोरेट करा जा रहा है एंड दिस वाज अगेन इन द लाइन ऑफ सेम थिंग, ठीक है। नाउ थोड़ा सा मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ हाउ द न्यू सेंट्रल विस्टा विल बी देयर। सो दिस इज योर ओल्ड पार्लियामेंट जो गोल शेप में थी, इट वाज बिल्ट बाय ब्रिटिशर्स। दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू ट्रायंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो दिस इज योर ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। ये उस टाइम प्रपोज था, इंफोग्राफिक तब का है, बट ये भी काफी हद तक इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। अ कपल ऑफ थिंग्स आर लेफ्ट बट मोर और लेस द कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। नाउ पूरे उसके लिए देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ कंसर्न्स, ठीक है। एक आया है उसमें मेजर इज अ एनवायरमेंटल कंसर्न कि कितने पेड़ काटे गए हैं, बिकॉज दैट होल एरिया इज स्प्रेड इन एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड एंड दिल्ली आज से कोई 20 साल पहले गया होगा तो यू गाइज मस्ट हैव सीन दिल्ली यूज टू बी अ जंगल पहले, ठीक है। सो द होल कॉन्क्रेटाइजेशन के लिए अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव बीन टेकन, हैव बीन रिस्क्ड एंड जो पूरा एरिया है उसकी ग्रीनरी हटा के उसको कॉन्क्रेटाइज कर दिया गया है। सो अराउंड अबाउट 326 पेड़ों को वहां से काटा गया, 250 नंबर ऑफ ट्रीज जो थे एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में उनको काटा गया एंड 250 ट्रीज आर प्रपोज टू बी प्लांटेड। पहले उनको काट दिया जाएगा, कितने साल पुराने पेड़ों को काट दिया जाएगा एंड 250 नए लगाए जाएंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता नहीं वो कब इवॉल्व करेंगे, क्या रहेगा, गॉड नोज व्हाट। and there are around about 194 trees who which will be fell again, ठीक है, पूरे प्रोसेस में। तो environmental जो कवर है आपका वो बहुत drastically आपका हैम्पर होगा, right? Now there has been a continuous influx of people, round about 3200 जो लेबर है आपकी which are in construction phase, 200 permanent and 3000 जो आपके temporary staff है, they have been coming. Then around about 9500 people have been migrating, ठीक है, continuous inflow and outflow रह रहा है। Then there are about 5000 people who permanently work in राष्ट्रपति भवन। तो जो population density है उस पूरे एरिया की, you can have a rough idea, rough estimate कि पूरा एरिया वो कितना डेंसली पॉपुलेटेड है। ऑल्सो अगर आप इसकी बात करो, सो दिस इज योर राष्ट्रपति भवन, ठीक है। राष्ट्रपति भवन, आई होप ऑल ऑफ यू नो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल रेजिडेंस है। नाउ दिस इज सेंट्रल विस्टा जिसको अभी पूरा डेवलप करा जा रहा है एंड दिस इज योर इंडिया गेट। तो ये वाला जो पूरा एरिया है इसको बहुत अच्छे से फ्रीडम फाइटर्स को डेडिकेट करा जा रहा है एंड दिस इज योर सेंट्रल सेक्रेटरीट, ठीक है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको कमेमोरेट करने के उसमें देखा जा रहा है। देयर आर कपल ऑफ मोर डिटेल्स इससे रिलेटेड, वो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट जो है इट बेसिकली एम्स कि हम इंटीग्रेट करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है एंड देयर विल बी अ सिनर्जाइज्ड फंक्शनिंग ऑफ मिनिस्ट्रीज which are presently spread around 47 buildings है in particular and they are spread in various areas, so they will be taken care of. It also seeks to build a new parliament, ठीक है, new presidential complex बनेगा and the office of prime minister of India and जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको भी वहीं रखा जाएगा। अभी सब कुछ ना बहुत बिखरा बिखरा है। आई डोंट नो वेदर यू गाइज हैव हैड द चांस टू गो सी द पार्लियामेंट, इट्स अ ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर बट बहुत कुछ स्कैटर्ड है, तो उसकी वजह से अ लॉट ऑफ टाइम टेक्स प्लेस इन इवन नॉर्मल मटेरियल एक्सचेंजेस बिटवीन द ऑफिसेस, उस चीज को रेक्टिफाई करा जा रहा है। ऑल्सो इवन इफ यू हैव नॉट बीन टू पार्लियामेंट, लोकसभा टीवी पे जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स आती है, हैव यू सीन द सेटअप, वो ग्रीन कलर का कारपेट है, हाउ दे सिट,
ऑल्सो वो पंखे भी उल्टे स्टाइल के लगे हुए हैं, राइट, सीलिंग से फैन नहीं टपकता, सीलिंग से फैन नहीं लटका हुआ है, इट्स द इन्वर्टेड फैंस. सो आप ओवरऑल अगर एनर्जी कंजम्पशन कॉस्ट देखो तो दैट हैज गॉन स्काई हाई. ऑल्सो the parliament of any country is said to be the temple of democracy of that country. So उसको at par करना, उसको modernize करना was seen by the government as the need of the hour. उसके लिए इस पूरे issue को push करा गया. And the basic एक माइंड मैप जो व्यू पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया था वो ये था कि बाय द टाइम वी सेलिब्रेट द सेटेनरी सेलिब्रेशंस, ठीक है, 100 ईयर्स जब तक हम पूरे करेंगे तब तक इस पूरी प्लेस का बिल्कुल नक्शा पलट दिया जाएगा. द होल एविडेंस ऑफ ब्रिटिश लेगेसी उसको हम हटा देंगे. ये एक जो मेन बड़ा बिगर पिक्चर लेके माइंड में चला जा रहा है वो ये है, राइट. नाउ इसके बाद क्या होगा, इट विल कवर अराउंड 3 किलोमीटर स्ट्रेच जो मैंने आपको दिखा दिया फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, लुटियंस दिल्ली का जो हार्ट है. ऑल्सो पार्लियामेंट हाउस में जो राष्ट्रपति भवन है, जिस उसको सेक्रेटरीट को दोनों जो जगह हैं उनको नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक में रखा जाएगा. एंड वहां से जो वहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स है उसको बहुत स्मूथ प्रोसेस कर दिया जाएगा. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर. आपने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा होगा. न्यू पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो इट इज अराउंड अबाउट 3 times बिगर देन द ओल्डर वन एंड लाइकली ट्रायंगुलर शेप में है. आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है, बट जो G20 समिट होगा उस तक वी आर एक्सपेक्टिंग कि पूरा का पूरा काम ये पूरा हो जाएगा, सो दैट इफ एनी गेस्ट ऑफ ऑनर वांट्स टू विजिट द पार्लियामेंट दैट कुड बी शोकेस्ड एज अ अचीवमेंट इन फ्यूचर. ठीक है. नाउ प्रेजेंट पार्लियामेंट की आप बात करो तो दिस वाज इनॉग्रेटेड 1927 में लुटियंस एंड बेकर, ठीक है, एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, ये हमने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा है. ऑल्सो राष्ट्रपति भवन जो है इट वॉज डिजाइंड बाय लुटियंस एंड सेक्रेटरीट दैट इंक्लूड्स बोथ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक दे वर डिजाइंड बाय हर्बर्ट बेकर. नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स जो है दे आर नेम्ड फॉर देयर लोकेशन बिकॉज एक नॉर्थ ब्लॉक में है राष्ट्रपति भवन से, एक साउथ ब्लॉक में है. नीड इसकी कही जा रही है. प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग इज सेड टू बी 85 years old and ultimately it suffers from inadequacy of space, house and members. कितने लोग वहां पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए इट इज नॉट प्रॉपरली वेल स्टाफ्ड. ठीक है, वहां पे उतनी जगह नहीं है, इसीलिए देयर वाज अ नीड अरोज की वहां पे और फर्दर कंस्ट्रक्शन करी जाए. एंड सी पार्लियामेंट इज नॉट छोटी मोटी बिल्डिंग की उस पर छोटा प्रोजेक्ट लगा के आप उसको काम को निपटा दो. ठीक है, द होल थिंग हैज टू बी रिवैम्प्ड बिकॉज पार्लियामेंट ऑफ एनी कंट्री इज सॉर्ट ऑफ अ मॉन्यूमेंट फॉर द वर्ल्ड. ठीक है, हर कंट्री की पार्लियामेंट को बहुत लंबे तरीके से बहुत सारे पैरामीटर्स पे जज करा जाता है. सो इट हैड टू बी मेड श्योर दैट जो आपका पूरा पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है वो ऑन पॉइंट हो. नाउ अगर पुराने जो आपको पार्लियामेंट है उससे बात करें, इट सफर्स फ्रॉम स्ट्रक्चरल इश्यूज एंड द बिल्डिंग दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड ऑफ इट्स हेरिटेज. एंड जो मेजर टूरिस्ट का इन्फ्लक्स है कॉन्टिन्यूस, उसकी वजह से भी देयर हैड बीन अ लॉट ऑफ डैमेजेस. ऑल्सो टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए, टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए दिस वॉज सेड टू बी द नीड ऑफ द आवर. नाउ जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी, बिकॉज सिंस एवरीथिंग इज न्यू, वहां पे हाईली अकूस्टिक ऑडियो विजुअल जो आपका प्रॉपर पूरा चैनल है वो डिवाइस करा जाएगा, उसको यूज करा जाएगा. ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट होगा, लेवल ऑफ सिक्योरिटी विल बी चेक्ड. एज वी ऑल नो ऑलरेडी पार्लियामेंट में अटैक्स हो चुके हैं, तो वो जो सिक्योरिटी ब्रीच वाले पूरा इशू है उसको भी सर्टेन करा जाएगा. बायोमेट्रिक्स विल बी इन्वॉल्व. नाउ सेंट्रल विस्टा की बात करो तो इट इज अ एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सॉवरेनिटी. ठीक है, उसको एज अ सॉवरेनिटी एंड इंडिया की सॉर्ट ऑफ मान मर्यादा की तरह देखा जाता है, तो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ इन एवरी पॉसिबल वे. नाउ मेजर कंसर्न्स की बात करें तो कंसर्न्स यहाँ पे क्या निकल के आए. इन्वायरमेंटल कंसर्न मैं आपको बता चुकी हूँ, अ लॉट ऑफ ट्रीज हैड टू बी क्लियर्ड आउट. दूसरा है द होल प्रोसेस हैज बीन लाइक सॉर्ट ऑफ शैडोड इन ओपेसिटी एंड सीक्रेसी. तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है पूरे केस में. दिस वाज सेड टू बी अ मेजर इशू. Also, there were several key approvals for parliament building that were done during lockdown. तो लोगों को पता ही नहीं है क्या चीज कैसे प्रोसीड करी. Right? Now, environmental concerns I've told you.
ऑल्सो द मेजर कंसर्न एक निकल के आ रहा है कि कंसिडरिंग जितनी हमारी इकोनॉमी अभी सफ़र कर रही है, स्पेशली पोस्ट पैंडमिक के टाइम पे कितना लोग सफ़र करे एंड वी हैव फेस्ड अ ह्यूज सेटबैक, क्या उस फाइनेंशियल बर्डन से ज़्यादा ज़रूरी वॉज अ बिल्डिंग कि उसको कंस्ट्रक्ट करा जाए, एंड इतना इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट जो कॉस्टिंग है दैट हैज़ बिन 20,000 करोड़, ठीक है, क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता था ऐसे क्रूशियल टाइम पे इतना अफोर्ड करना, व्हेन पीपल आर सफरिंग, व्हेन इकोनॉमी इज सफरिंग? ये एक मेजर इशू इस पूरे केस में निकल के आ रहा है, right? So this concludes your all three topics of today. I hope these are clear. If you have any doubt, you can mention them in comments. Okay. So I hope आज के topic clear हैं. If you guys have any doubts, please mention them in comments. I'll try taking them up in next class. आपका seize the mains का answer है that we are going to discuss in very detail, and we are expecting very good answers from you. This is all for today. Stay tuned in. Keep learning. Keep watching. Thank you so much. Bye bye.